Good morning students and welcome to our e-learning session for class 9th. Today we are on lecture number 1 for chapter number 10, that is organs of government. One of the most important chapter, one of very interesting as well as very important chapter for your exam purpose as well. So here we will going to discuss number of things, and as I said, this is one of the most important chapter for your exam and for your further study and further future. So in chapter number 9 you have learned and discussed about the fundamental rights, fundamental duties and direct principles of the state policy. See students, as India is a democratic country means what? The rule by the people, for the people and of the people. We know there are different types of government, but in India we are having democratic country and democracy is there. Okay. So in this chapter we will going to talk about the Rajya Sabha, Lok Sabha, about the Prime Minister, about the President of the country, how they work, what are the eligibility to become the MPs or to become the MLAs or the member of the Rajya Sabha and so on. So in this manner also this is one of the very important chapter to learn and to understand. So we know there are three organs of the government, the legislature, the executive and the judiciary. Now see, since your lower classes we are learning this, that in the government there are three organs. One is legislature. Legislature means what? The law making body of the government, जो देश के लिए कायदा बनाती है, law making body of government. Then executive, जो कायदे हैं, जो नियम हैं, उसको एग्जीक्यूट करना. सो व्हाट इज द वर्क? इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इम्प्लीमेंट करवाती है कायदा. एंड द जुडिशरी. ओके, सो थ्री ऑर्गन वी आर हैविंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सो द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. So we shall study in detail the formation of these three organs of the government. Even their powers, their functions and their interpersonal relation. Now in this chapter even we will going to discuss how these three organs are linked each other, linked together, how they work, what the power they are having, which type of powers they are having, how they work independently as well as how they work interrelatedly. So this all point we will going to discuss. So one of the main objective of the nation is to maintain the law and order and thereby achieve the welfare of the nation. See student, any country ultimately goal, ultimately core idea to do the development and the betterment of the society, betterment of the citizen of the country. चाहे कोई भी देश है, ultimately देश का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या चाहती है? लोगों का अच्छा हो, लोगों का वेलफेयर हो, देश हमारा आगे बढ़े. सो ये तीनों ऑर्गन हैं, अलग अलग तरीकों से काम करते, बट अल्टीमेटली द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द कोर आइडिया. ओके, so at the same time to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizen. Even fundamental rights and duties, you know what are the fundamental rights and fundamental duties. As we are by constitution, by law we got number of rights, fundamental rights जिसको हम कहते हैं by birth जो हमें मिलते हैं. So fundamental rights and fundamental duties. So to nurture and to protect this fundamental right, this is also one duty. So for the progressive development of the state, it's necessary that all three organs of the government, that is legislature, executive and the judiciary, work in mutual unity, cooperation and coordination. So तीनों organ हैं जो government के, legislature, executive and judicial. तीनों ऑर्गन भले ही वो अलग अलग ऑर्गन हैं, बट दे वर्क टुगेदर अल्टीमेटली द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. दैट इज द कोर आइडिया. ये तीनों ऑर्गन्स जो है ये इसीलिए काम करते हैं. नाउ so that government can run in administration effectively and efficiency.
ओके, तो लेजिस्लेटिव फ्रेम द लॉ. अब लेजिस्लेटिव का काम क्या है लेजिस्लेचर का? टू फ्रेम द लॉ, कायदा बनाता है. देन द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द फ्रेम लॉज. जो कायदे लेजिस्लेचर में बने हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम कौन करेगा? इट विल बी डन विद द बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडीज. एंड द जुडिशरी मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर बाय द पनिशिंग द पीपल हु वी कैन से द वायलेट द लॉज. और कायदा बन गया, लेजिस्लेचर में कायदा बना, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसको एग्जीक्यूट करवाया. एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? पनिशमेंट ऑफ द पीपल हु वायलेट द लॉ. और जो कायदा का उल्लंघन करता है उसको पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा. सो दिस थ्री ऑर्गन, ऑल थ्री ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट. लेजिस्लेटर which makes the law, executive जो उसको execute करवाता है to implement it, and the judiciary. तीनों like they link together, all three are very important. So the legislature at the Constitution of India consists of the Parliament at the center and the Legislative Assembly at the state level. Now we know at the central level legislature की अगर बात करें तो Parliament, we know what is the Parliament. Okay, so we know what is a parliament? Parliament means what? We know. Means lower house, upper house, and president. राज्यसभा, लोकसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति. सो व्हाट इट सेज? लोअर हाउस, अपर हाउस एंड द राज्यसभा, ये सब बना के क्या होता है? ये हमारा पार्लियामेंट बनता है. पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. सो लोअर हाउस, अपर हाउस एंड द president, that makes the our parliament. So legislative as per the Constitution of India consists of parliament, that the center, and the legislative assembly, विधान सभा या तो विधान परिषद स्टेट लेवल पे होती है. जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटर होता है उसको कहा जाता है विधान सभा और विधान परिषद, या तो विधान सभा या तो विधान परिषद, या तो कोई स्टेट में दोनों हो सकते हैं. So the legislature as per the Constitution in India consists of the Parliament. Now here you have to be very much clear. Parliament जब हम संसद बोलते हैं तो संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति. लोकसभा, राज्यसभा and president. And at the state level it is having the legislative assembly at the state level. So the executive as per the Constitution of India consists of the president, the prime minister and the cabinet minister. ये legislature की बात है. Parliament और legislative assembly at the state level. But in the we can say at a state level पे क्या होगा? State level पे विधानसभा या तो विधान परिषद. Okay, and in the what we can say at the in the executive, president, prime minister and the cabinet minister. executive bodies के अंदर कौन आएगा? president, prime minister and the cabinet ministers. So prime minister, cabinet minister and the president is the administrative system at the center, and the governor, the chief minister and the cabinet and administrative system at the state level. अब executive body की अगर हम बात करें तो executive body में central level पे कौन आएगा? सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव बॉडी की. सो सेंट्रल लेवल एग्जीक्यूटिव बॉडी में सबसे पहले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर. इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आएगा? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स एंड द मिनिस्टर्स. सेम जैसे सेंट्रल लेवल पे चलता है स्टेट लेवल पे भी वही चलता है. सो इन द लेजिस्लेटिव बॉडी अगर इफ वी टॉक अबाउट दिस टू ऑर्गन, फर्स्ट लेजिस्लेटर. So in the central we are having the parliament, and in the state level if we talk then we are having legislative assembly or the legislative council. Okay, if we talk about the executive body or the executive organ, so in the central level we are having the president, prime minister and cabinet
ministers. And if we talk about the state level, then we are having governor, chief minister, and the cabinet and the ministers. So we can say, whereas in the judiciary, the Supreme Court is the top. So at the central we are having Supreme Court. अगर हम judiciary की बात करें तो Supreme Court सर्वोच्च संस्था है central level पे Supreme Court. And in the middle, मतलब in the state we are having high courts, and the state at the bottom there are subordinate courts, district courts and the special courts. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल कोर्ट होती है, सब्सिडरी कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है. सो एट द सेंट्रल लेवल वी आर हैविंग सुप्रीम कोर्ट, एट द स्टेट लेवल हाई कोर्ट्स, एंड उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सब्सिडरी कोर्ट्स एंड सो ऑन. सो सी यहाँ पे स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, सेंट्रल लेवल पे भी एक स्पेशल सिस्टम है. एट द एवरी स्टेट इट इज हैविंग अ डिफरेंट, बट इट इज सेम. एज सी इफ यू टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर, ओके, तो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. एट द स्टेट लेवल उसको कहा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडी, सो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इट्स इम्प्लीमेंट द लॉ, कायदों को पालन करवाने का काम करता है, एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है. सो इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द सेंट्रल लेवल में कौन आएगा? President, Prime Minister, Cabinet Ministers. President, Prime Minister and Cabinet Minister. And if we talk about the state level पे क्या होगा? Governor, Chief Minister and the Cabinet Ministers. And if we talk about the judiciary, तो central level पे उसको क्या कहा जाएगा? Supreme Court. At the state level we will consider as a high court, and district courts होती है, उसके अंदर subordinate courts होएगी, special courts. So in this way all the powers उसको divide किया गया है. Though they are different, they are having the different work, but they work as a in the combination. Ultimately the goal is to welfare of the society, to maintain the law and order, to nurture the fundamental rights, to protect the fundamental right. ये अल्टीमेटली इसका ये एक उपयोग है. सो इंडिया इज अ यूनियन स्टेट. ओके, यूनियन स्टेट है. हाउ मेनी स्टेट्स नाउ वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. ओके, सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. नो स्टेट्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जियन. अब भले ही हमारा भारत देश है, अलग अलग राज्यों से बना हुआ है, 28 स्टेट, बट नो स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड नो स्टेट इज सोवर्जियन. टोटली वो अपना स्वतंत्र एक अस्तित्व नहीं है. दे शोज द इंटरडिपेंडेंस. ओके, सो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. अलग अलग स्टेट को मिला के हमारा भारत देश बना हुआ है. सो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट. नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जियन. ओके, so the Indian parliamentary system has divided the power according to the principle of division of power between the center and the state. अब सेंटर ने पूरा जो पावर है टू कंट्रोल, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, एंटायर सिस्टम एंड द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. कुछ राज्यों के पास भी पावर है, अल्टीमेटली पावर स्टेट के पास है. स्टेट मीन्स पार्लियामेंट के पास है. So the power is divided into different criteria. Okay, so what we can say, the principle of division of the power between the center and the state. State के पास भी कुछ पावर है, जैसे गुजरात राज्य के कुछ निर्णय हैं वो गुजरात राज्य सरकार कर सकती है, बट मोस्टली और द मेजर डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, एंड नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट and sovereign. So Indian parliamentary system has divided the powers according to the principle of division of power between the center and the state. So जो power है that is divided, or the it is given to the state, and some power it is given to the center government. So the legislature and the executive is totally interdependent, and legislative and the executives. See, legislator क्या करता है? कायदा बनाता है. executive body which what will it do? ये implement करवाता है. समझ में आ रहा है? लोग कायदा जो है वो legislative council बनाती है.
उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का. बट बोथ शोज द इंटरडिपेंडेंस. लेजिस्लेटिव असेंबली या तो लेजिस्लेटिव बॉडी अकेला काम नहीं कर सकती और ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी अकेले काम कर सकती है. दे शोज द इंटरडिपेंडेंस. So legislature and the executive is totally interdependent on each other, and where the judiciary is separate, independent and impartial organ. Now see, यहाँ पे ये point आपको याद रखना है. Judiciary is independent. Judiciary जो organ है, it is a independent. Whereas legislature and the executive shows the interdependence. दोनों एक दूसरे पे आधार रखते हैं, दोनों एक दूसरे के interdependence शो करेंगे. कौन? legislature and the executive. Whereas judiciary is the independent and the separate and we can say impartial organ. वो एक अलग उसकी एक तंत्र है, प्रणाली है जो अपने हिसाब से काम करती है. So now the principle of division of power. Now let's talk how this division is made, how it is like किस तरह से कौन से organ को कितने power दिए गए, how it is like different and how it is given. So the government carries out the function of the state of this are different from one another. Whether it is a state government, whether it is a central government, if we talk about the legislature, if we talk about the executive body or if we talk about the judiciary, okay, all perform a different type of work, all are having different types of powers. They work like independently, but they have the interdependence as well. So the power, division of the power is there. हर एक ऑर्गन के पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्राइटेरिया तक के पावर दिए गए हैं. So the government carries out the function of the state and these are the different from one another. Okay. So the function of all the three organs of the government are different and all the function require the certain expertise. Now as if anyone is working in the legislative body, so they need some expertise. कोई उनके अंदर विशेष गुण एक्सपर्ट्स होने चाहिए. If we talk about the executive, if anyone is working in the executive, judiciary or the legislative, they require some expertise. ठीक है, हर एक ऑर्गन का खुद का काम है. It is having its own function, own way. So they require the expertise. उनके वो expert होने चाहिए to work in that particular body. So all the three organs of the government should be administrated by the different people and each organ should carry out its own function. So different people will work. Say for legislature, legislature में lower house या तो लोकसभा, upper house, राज्यसभा के अंदर कौन होता है? The member of parliament. Okay, who are the directly elected by the people. Yes, you remember this. Who are these members? लोकसभा के member कौन होते हैं? They are the directly elected. Election which held after every 5 years. So we directly they are elected. So legislature में कौन होते हैं? जिसको हम direct election से नोटिफाई या तो जो सिलेक्ट हम इसको इलेक्ट करते हैं. एग्जीक्यूटिव में द ऑफिसर, IAS IPS ऑफिसर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं हु मैनेज, हु इम्प्लीमेंट दिस लॉज. ओके, एंड जुडिशरी पुलिस सिस्टम एंड द जज, और ये पूरी अलग सिस्टम है. दो दे शोज द इंटरडिपेंडेंस बट द स्पेशल पर्सन and the different person work in this manner or in this organ. So it is said by division of power misuse can be avoided. Now all three organs are having the power, but there is a division of the power. इनमें से ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, तीनों के पास पावर है. All three organs are important, but no organ is supreme. So कोई ऑर्गन उसके पास सुप्रीम पावर नहीं हो सकता. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गन. सो इन दिस वे वी कैन से दिस इज द डिविजन ऑफ द पावर. सो पावर का कोई मिसयूज नहीं कर सकता, ना लेजिस्लेटर, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी. As this power is divided into completely, it is divided into these three organs. All organs are having the power, but no one to avoid the misuse of this power. So division of the power will be
there. So to make the certain function of the government easy and efficient, these organs work. So the three organs of the government, in order to make the function of the government easy and efficient, for example, the legislature has the power to formulate the law, but some power are so given to the executive and the judiciary that the legislative cannot misuse the power. Now say for example, legislative assembly का काम क्या है? To formate the power. But some power, some law ऐसा है कि जो legislative अकेला नहीं कर सकता. They have to, and it needs to ask, or that power is lie with the executive and judiciary. उसी तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम इंप्लीमेंट करवाना है, पर उसके पास जो पावर है उसमें भी एक ब्रेक है, एक सर्टन लिमिट है. दे हैव टू आस्क अ परमिशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में आप उसको चेक कर सकते हो. जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गन, बट कहीं ना कहीं चेक होता है. सो इन दिस वे दो लेजिस्लेटिव कायदा बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करवाएगी, जुडिशरी लॉ एंड ऑर्डर चेक करेगी. तीनों, ऑल थ्री ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट ऑल थ्री के ऊपर आप चेक और बैलेंस. सो कोई भी ऑर्गन ना सुप्रीम पावर में हो सकता है. So we can say that is the legislature cannot misuse the power. Similarly, the executive is controlled by the giving power to the legislature and the judiciary is controlled by giving power to the legislature and the executive. अब legislature को कौन चेक करेगा? Executive and judiciary. एग्जीक्यूटिव के ऊपर ध्यान कौन रखेगा, कंट्रोल कौन करेगा? लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. जुडिशरी को चेक कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर. सो तीनों ऑर्गन है, इट इज चेक and controlled by other two organs. All three organs, though they are independent, though they are power, they are having the power, but they will be checked and controlled by two other organs. If we talk about the legislator will be checked by the executives and the judiciary. If we talk about the executive, so it will checked and controlled by the legislative and judiciary. And if we talk about the judiciary, then it will control and checked by the legislative and the executives. So तीनों ऑर्गन, चाहे वो जुडिशरी है जो कायदा, लेजिस्लेचर है विच मेक्स द लॉज, जो कायदा बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करवाता है, एंड द जुडिशरी जो हु मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. ऑल थ्री आर हैविंग द पावर, बट दिस पावर आर डिवाइडेड. कोई एक ऑर्गन और एनी वन ऑर्गन इज नॉट अ पावरफुल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर. ओके, सो इंडिया इज द रिपब्लिक हैविंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. रिपब्लिक कंट्री है. ऑन 26 January वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री. So the representation of the people is the center is seen at the parliament of the state is seen in the legislative assembly. Now parliament, again parliament means what? Lok Sabha, Rajya Sabha, president. See this point you have to keep in mind. Sorry. So legislative means what? India is the republic having the parliament democracy. And the representation of the people at the center is seen in the parliament and of the state is seen in the legislative assembly. सेंटर लेवल पे हम जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको कहा जाता है विधानसभा. तो विधानसभा मतलब क्या? विधानसभा मतलब गवर्नर और विधानसभा. ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. सो टू रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सेंटर इज सीन इन द पार्लियामेंट्स. केंद्र में पार्लियामेंट होगी एंड एट द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. और हर एक राज्य में विधानसभा. सी स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, हर एक राज्य में विधानसभा होना कंपलसरी होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ मैंडेटरी. हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, उसी तरह से हर एक राज्य में स्टेट लेवल का काम करने के लिए स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली. इन हिंदी वी विल से द विधानसभा. जैसे सेंटर में, केंद्र सरकार में पार्लियामेंट होती है, उसी तरह से राज्य सरकार में उसको कहा जाता है विधानसभा.
सो जैसे पार्लियामेंट इज कंपल्सरी, सो एट द स्टेट लेवल पे विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज मैंडेटरी और कंपल्सरी. So what we can say, the parliament is an important and apex organization of the nation. Apex सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य, सबसे सेंटर में अगर कोई ऑर्गन को माना जाता है तो वो है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, हाउ इट इज फॉर्म, इट इज मेड अप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, और इट इज शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल. एज डेमोक्रेसी के अंदर इट इज रूल्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. So we elect our rulers, we elect our leader by whom we want to govern. We elect our leader by whom we like to be governed. And these people are that leaders. So parliament is a apex institute, or we can say it is a very important. So parliament is an important and apex organization of the nation. क्योंकि ये कायदा बनाती है. एपेक्स है सर्वोच्च संस्था जिसको माना जाता है. इट इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन. सो द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेचर ऑफ 2 टाइप. यहां पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड द राज्यसभा, दैट व्हाट वी से इज द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के अंदर हम क्या कहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. ओके, लोकसभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल. राज्यसभा मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दैट मेक्स द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और उसमें उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को भी कंसीडर करना है. सो लेजिस्लेचर मतलब इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग द parliamentary democracy. The representation of the people at the center is seen in the parliament, and at the state level we are having legislative assembly. So the parliament is an important and apex organization of the nation. The Indian parliament consists of the president, vice president, Lok Sabha and the Rajya Sabha, and legislature is of 2 type. Now legislative जो है वो 2 तरह के होते हैं, यूनिकैमरल एंड द और द बाइकैमरियल. ठीक है, अब लेजिस्लेटिव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकैमरल या तो बाइकैमरल इन द स्टेट लेवल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिकैमरल एंड द बाइकैमरल. नाउ सी, यूनिकैमरल मतलब व्हेन द लेजिस्लेटिव इज कंसिस्ट ऑफ 1 हाउस, इट इज कॉल्ड द यूनि मतलब एक. तो राज्यों के लेवल पे जब कोई एक ही हाउस होता है, पार्लियामेंट वी नो, पार्लियामेंट मीन्स व्हाट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सो 2 हाउसेज आर देयर, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. बट यूनिकैमरल मतलब स्टेट लेवल पे क्या होता है, चाहे वहां पे विधानसभा इट्स अ कंपल्सरी, जिसको लोकसभा की तरह ही उसको हम मानते हैं, एंड विधान परिषद भी होती है. तो कुछ राज्यों में जैसे गुजरात है तो इट इज अ यूनिकैमरल. गुजरात के अंदर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको हम कहते हैं विधानसभा. सो इन गुजरात, इफ वी टॉक अबाउट अवर स्टेट गुजरात, देन वी आर हैविंग द यूनिकैमरल लेजिस्लेटर. सो व्हेन द लेजिस्लेटर इज कंसिस्ट ऑफ द ओनली 1 हाउस, इट इज कॉल्ड द यूनिकैमरल लेजिस्लेटर. लाइक गुजरात, गुजरात में सिर्फ विधानसभा है. विधानसभा मतलब लोअर हाउस या तो लोकसभा के जैसा ही, जिसको आप उसके फंक्शन एब्सोल्यूट लोकसभा के जैसे ही होता है स्टेट लेवल पे. एंड बाइकैमरियल मतलब व्हेन द लेजिस्लेटिव इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, इट इज कॉल्ड द बाइकैमरियल. अब बाइकैमरियल मतलब स्टेट लेवल पे. ओके, हियर यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द स्टेट लेवल, जहां पे अपर हाउस और लोअर हाउस, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है. विधानसभा इज अ कंपल्सरी, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपल्सरी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट. तो हर एक स्टेट में विधानसभा तो होती है. नाउ इट इज अप टू देम एज दे हैव टू गो विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, अ काउंसिल और नॉट. सो बाइकैमरियल मतलब व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्ट ऑफ द 2 हाउसेज, इट इज कॉल्ड द बाइकैमरियल.
legislature. So at the central level, the upper house of the legislature is called the Rajya Sabha. Now see, at the central level इसको क्या कहा जाता है? राज्य सभा. जैसे पार्लियामेंट में है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है. सो एज द सेंटर लेवल वी आर हैविंग द बाइकैमरियल. ओके, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है. At the central level when we are talking about, so at the central we are having bicameral system. दो houses है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है. Lower house, upper house. Okay. So when the legislature is consists of two houses, it is called the bicameral legislature. So at the central level, the upper house of the legislature is called the Rajya Sabha and the lower house is called the Lok Sabha. At the state level, the legislature consists of the legislative assembly and the legislative council. Now, central level पे हमारा bicameral है, दो houses है, लोकसभा and राज्यसभा. लोकसभा and राज्यसभा. So at the central level, we are having the bicameral system, legislative system, where two houses are there, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, thus 2 points you have to keep in mind. At the center level, it's a bicameral. We are having Lok Sabha and Rajya Sabha. So at the center level, the upper house of the legislature is called the Rajya Sabha and lower house is called the Lok Sabha. At the state level, the legislature consists of the legislative assembly, जिसको विधान सभा कहा जाता है, विधान सभा, and the legislative council, that is विधान परिषद. So most of the state have only legislative assembly, unicameral है. Most of the state की बात कर रहे हैं. I am not talking about the center. Center में हमारी bicameral system है, जहाँ पे लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है. Central level bicameral है. But if we talk about at the state level, so most of the state is having the legislative assembly, Vidhan Sabha, and few of the state is having the bicameral. जैसे सेंटर में है ऐसे ही स्टेट में है, ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे bicameral system है. So we can say state like the Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana also have the legislative council too. वहाँ पर upper house, lower house या तो विधान सभा, विधान परिषद दोनों प्रकार के houses है. Student, here you have to keep in mind, again I am explaining you, try to understand, as it is very important point to learn, to understand and to remember. जो मैं अभी बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, this is the one of the most important point to understand, to remember. Okay? See, at the center level, legislature जो house है, वो दो प्रकार से consist of two house in the central level. Legislature में central level पे दो houses हैं. One is the lower house, जिसका दूसरा नाम है लोकसभा. दूसरा हाउस है जिसको कहा जाता है अपर हाउस, एंड दैट व्हाट वी से इज द राज्यसभा. सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेस बायकैमरियल, बाय मतलब दो. सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव के दो हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा. टू हाउसेस मतलब बायकैमरियल सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम. एट द स्टेट लेवल विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपल्सरी. इसका मतलब है हर एक राज्य में विधानसभा तो होगी. नाउ इट इज आइदर और. कुछ स्टेट, फ्यू स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री विच इज हैविंग द बायकैमरियल सिस्टम. सो विधान सभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. काउंसिल मतलब परिषद. तो कुछ हमारे देश के कुछ राज्य, 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां पे बायकैमरियल मतलब विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद भी है. बट इफ वी टॉक अबाउट अवर गुजरात, in Gujarat we are having unicameral. गुजरात स्टेट के अंदर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, एज इट इज अ कंपल्सरी.
So few state at the state level the legislative council and the legislative assembly and the legislative council is there. Most of the state have only legislative assembly as it is compulsory. And state like the Bihar, अब ये कौन से state है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐड कर लो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना, 6 states. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना, 6 हमारे स्टेट ऐसे हैं आउट ऑफ 28 विच इज हैविंग बायकैमरियल लेजिस्लेटिव एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में 6 राज्य, 28 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे बायकैमरियल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, मतलब दोनों हाउसेस है. बाकी सभी स्टेट के अंदर सिर्फ एक हाउस है. स्टेट की बात कर रही हूं, सेंटर की नहीं. सभी स्टेट, मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर 1 हाउस है जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड द 6 स्टेट्स एज आई मेंशन दैट इज द बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक and Telangana is having the bicameral at the state level, that is the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Now let's talk about the legislature at the central level, that is a parliament. अब parliament में most important जिसकी हम बात करेंगे वो है लोकसभा और the lower house or the house of the people. See students, this is one of the most important points of this chapter and from your 9th standard study purpose also. Please pay your attention. Now, Lok Sabha is the lower house of the parliament. The member of Lok Sabha are the representative of the people who are elected through the direct election. अब लोकसभा के मेंबर कौन होंगे? दोस हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड. द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शन. हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं. आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन होते हैं. तो हम जिसको वोट करते हैं और जो मेजोरिटी से जीतता है वो होता है मेंबर. सो what we can say, Lok Sabha is the lower house of the parliament. The member of this Lok Sabha are the representative of the people who are elected through the direct election. मतलब ये लोगों की डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए गए हुए मेंबर होते हैं. So there are in all 545 member of the Lok Sabha. लाइफ टाइम याद रखना है. 545 सीट्स टोटल आपको याद रखनी है और गुजरात की है 26 सीट्स. ये 2 फिगर आपको याद रखने हैं. सो 545 सीट्स members of the Lok Sabha. Out of 545 members, 2 members are selected by the president from the Anglo-Indian community. Now see, total 545 members है, ठीक है. उसमें से 2 members जो होते हैं, 2 members are elected by president. और वो president किसको चुनते हैं? एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन. Now what do you understand by एंग्लो इंडियन? You know एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है? एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिशर वो रूल ऑन अस, ठीक है. तो मदर होती है, फीमेल मदर है वो इंडियन है और फादर है स्पेशली ब्रिटेन से हैं. तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है. सो 2 सीट विल बी रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियंस. आउट ऑफ 545, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 545. इन दैट 2 मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इलेक्शन कितने का होगा? 543 का. सी अगेन, देयर आर in all 545 members in Lok Sabha. Out of the 545 members, 2 members are selected by the president from the Anglo-Indian community. Please student pay your attention. ये याद रखना है, जरूरी है, very important.
लोकसभा में टोटल सीट है 545, लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं 545। आउट ऑफ दैट 545 2 मेंबर को 545 में से 2 मेंबर को कौन इलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट। और ये 2 रिजर्व सीट किसके लिए है, एंग्लो इंडियंस। किसके लिए है, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस मीन्स व्हाट, मदर इंडियन होगी, फादर और कोई कंट्री के या तो ब्रिटिशर होते, दैट इज व्हाट स्पेसिफिकेशन of the Anglo-Indian. So 2 seats are reserved for the 2 Anglo-Indians. Altogether there are 545 seats, 545 members and गुजरात का रिप्रेजेंटेशन है 26 सीट्स। गुजरात रिप्रेजेंटेशन है 26 सीट्स। So president is a part of the parliament, that is a Lok Sabha and Rajya Sabha. We understood here. Parliament means what? Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Okay, so President is the part of the Parliament. So President is a part of the Parliament, that is a Lok Sabha and Rajya Sabha. The President addressed the first meeting of the Parliament and joint session of the Parliament. अब President जो लोकसभा की सबसे पहली मीटिंग होती है, इलेक्शन के बाद सबसे पहला जब सेशन होता है तो उसको एड्रेस, संबोधन करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स ये एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। लोकसभा में सबसे पहला सेशन होता है आफ्टर इलेक्शन, सो इट विल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा का सबसे पहला जब उसका सेशन होता है तो उसको संबोधन, उसका स्टार्टिंग, उसको एड्रेस कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। और जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन मतलब काफ़ी बार लॉज बनाने में, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, कभी कोई ऐसे मुद्दे पे चर्चा होती है, कायदे बनाने के अंदर ऐसी डीप डिस्कशन होती है, उस वक्त राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर साथ में बैठते हैं। अदरवाइज लोकसभा का काम अलग चलता है, राज्यसभा का काम अलग चलता है। बट नंबर ऑफ टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन होती है जब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को साथ में बिठाया जाता है, जिसको कहा जाता है जॉइंट सेशन। और इस जॉइंट सेशन को भी एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। सो लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार आते हैं, 2 बार एड्रेस करते हैं। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट सेशन होता है लोकसभा का, तब प्रेसिडेंट आते हैं, या तो जॉइंट सेशन को एड्रेस करना होता है। जॉइंट सेशन मींस लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर। उसके अलावा प्रेसिडेंट कभी लोकसभा में आते नहीं हैं। सो व्हाट वी कैन से, बिसाइड दिस 2 ओकेशन द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड द पार्लियामेंट। 2 सेशन, 2 ओकेशन को छोड़ के, पहला ओकेशन जब लोअर हाउस का फर्स्ट सेशन है तब प्रेसिडेंट आते हैं, और इफ द जॉइंट सेशन विल बी देयर देन द प्रेसिडेंट विल कम। बिसाइड दिस 2 ओकेशन प्रेसिडेंट नेवर अटेंड द पार्लियामेंट। प्लीज स्टूडेंट इसको याद रखना है, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार आते हैं। पहला जब लोकसभा का पहला सेशन है तब, या तो कोई जॉइंट सेशन है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये 2 ओकेशन को छोड़ के प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट में आते नहीं है। सो द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउस। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन मतलब जॉइंट सेशन बुलाना है तो उसकी नोटिस, उसका समन दे सकते हैं प्रेसिडेंट। Then President can summon both the house of the parliament, can withhold the proceeding of the both house of the parliament and can even dissolve the parliament. अब President का पावर क्या है, तो President क्या कर सकते हैं, President का पावर क्या है, as it is a part of the parliament. So parliament के सेशन को बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, उसको रुकवा सकते हैं, या तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं सेशन को। दिस 3 पावर्स लाई विद द प्रेसिडेंट। जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, या तो डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
So it can, the president can summon both the houses of the parliament, can withhold the proceeding of the both the houses of the parliament, and can even dissolve the parliament. A bill which has passed through 3 reading in both the houses of parliament can become an act only after the president sign. अब लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी आप बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बिल मतलब कोई एक चीज, अगर आपको, जिसको कहते हैं प्रपोजल. लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कायदा बनाना. अब इसके लिए प्रपोजल रखनी पड़े ना कि हमें ये करना है, हमें ये चेंज करना है, हमें इसमें एडिशन करना है, सबट्रैक्ट करना है, ऐड प्लस माइनस करना है. तो बिल मतलब क्या? प्रपोजल. तो दोनों हाउस में से जब प्रपोजल या तो लॉ पास हो जाता है मेजोरिटी से, बट वो कायदा तभी बनता है, वो बिल तभी पास माना जाता है जब प्रेसिडेंट उसमें साइन करके दे. सो पावर लाई विद द president. So it has passed through the 3 reading in both the houses. 3 बार रीडिंग किया जाता है. पहला एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता है, सेकेंड रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड रीडिंग एक सिर्फ एक प्रोसेस के रूप में पढ़ा जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है. So a bill which has passed through 3 reading in both the houses of the parliament can become an act only after the president sign it. लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है. कोई भी पार्टी जीत सकती है, कोई भी नेता चुन के आ सकता है. तो इट इज, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. सो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. इट्स टर्म्स इज ऑफ 5 years. 5 year में सरकार बदल जाएगी. ओके, सो इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, एंड if it is not dissolved before the completion of the year. अब 5 साल भी बेस्ट सिचुएशन में अगर बीच में डिसॉल्व हो गई, गवर्नमेंट सरकार गिर गई, तो अविश्वास का प्रस्ताव अगर पारित हो गया, तो 5 साल के पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है. सी, लोकसभा के बारे में फिर से आप समझिए. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोकसभा मतलब लोअर हाउस. लोअर हाउस या तो इसका नाम है हाउस ऑफ द पीपल. इसके मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं इलेक्शन के द्वारा. टोटल नंबर ऑफ सीट 545. 545. आउट ऑफ 545, 2 seats are reserved or 2 members will be elected by the president from the Anglo-Indian community. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जिसकी मदर इंडियन है, फादर ब्रिटिशर, मोस्ट ऑफ इसको स्पेसिफिकेशन दिया गया है. नाउ गुजरात की सीट 26, इसमें नहीं दिया पर आपको याद रखना है 26 सीट. प्रेसिडेंट का पावर है. सो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज अ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा का सबसे पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन विल बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट. लोकसभा के फर्स्ट सेशन को एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, और ज्वाइंट सेशन होगा. ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कोई डिस्कशन करने साथ में बैठेंगे, तो उसको एड्रेस भी प्रेसिडेंट करते हैं. सो इन दैट मैनर प्रेसिडेंट विल कम इन द 2 occasion in parliament, only in the 2 occasion, first session of the Lok Sabha, or if it is a joint session of the parliament, then and then only president will come. So in this 2 session, 2 occasion president parliament में आते हैं. Otherwise, beside this 2 occasion, president never come to parliament. कोई भी बिल मतलब प्रपोजल, कोई भी कायदा बनाना है, घटाना है, हटाना है, बढ़ाना है, तो उसको कहा जाता है प्रपोजल. प्रपोजल मतलब बिल. तो बिल के लिए 3 बार रीडिंग होता है दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा. 3 बार रीडिंग मतलब पहली बार उसके बारे में चर्चा होती है, दूसरी बार उसकी पक्का फॉर्मेट होता है, एंड थर्ड इज एक रीडिंग की जाती है. देन इट विल साइन बाय द प्रेसिडेंट. जब कोई कायदा पास हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के लीडर्स मेंबर्स अग्री हो गए चेंजेस के लिए, एडिशन के लिए, घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, देन इट इज रिक्वायर्ड टू साइन बाय द प्रेसिडेंट. जब तक कोई कायदा राष्ट्रपति के द्वारा साइन नहीं किया जाता, तब तक वो कायदा बनता नहीं है. ओके, सो प्रेसिडेंट
एंड द लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। अब एक बात आपको याद रखनी है लोकसभा की, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। 5 साल में इलेक्शन होती है, मतलब सरकारें बदल जाती है, इवन बिफोर द टर्म 5 साल के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। सो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, member will be directed elected by the election, total number of seat 545, out of that 545 2 members will be selected by the president from the Anglo-Indian community. President will address the first session of Lok Sabha and address the joint session of the Lok Sabha, of the parliament. This point you have to keep in mind. So Constitution of India is supreme and not the parliament. अब parliament legislative body है, it is having the power but it is not the supreme, सर्वोच्च नहीं है. Which is a supreme? Constitution, जिसको हम कहते हैं बंधारण. ठीक है. So Constitution of India is a supreme and not the parliament. So hence the parliament has to enjoy its power within the limit prescribed by the Constitution. अब चेक एंड बैलेंस मैंने आपको कहा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबके पास पावर है बट इट इज कंट्रोल. सो इट इज कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. लेजिस्लेटिव को कौन कंट्रोल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर बट इट इज हैविंग द लिमिटेड पावर एंड इट इज कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट. And hence the parliament has to enjoy the power within the limit prescribed by the constitution. If the law framed by the parliament violate the constitution, they can be challenged in the court. अब ऐसा कोई कायदा बना दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट से बाहर है, तो यू कैन उसको आप चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट. So what we can say, if the law framed by the parliament violate the constitution, constitution को violate करता है तो you can challenge in the court, and even can be challenged in the court if the court fits the framed law against the provision of the constitution, the court can nullify the law. और ऐसा कोई legislative के अंदर कायदा बना जो constitution को हानि पहुंचाता है तो कोर्ट उसको नलीफाई करना, हटा देता है वो कायदा. मतलब पार्लियामेंट ने जो कायदा बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया भी जा सकता है, स्टे लाया जा सकता है. सो सी यहाँ पे आप समझो, लेजिस्लेटर उसके पास पावर है टू मेंटेन एंड टू इम्प्लीमेंट, टू मेक्स द लॉ, बट इट विल चेक बाय द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द जुडिशरी. ठीक है. नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा के अगर हमें मेंबर बनना है तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? सी, एज फॉर द डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू क्लियर योर मेडिसिन, MBBS एंड द होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक व्हाट्सएवर. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा? So to be qualified as the candidate and to be elected as a member of Lok Sabha, she must be the citizen of India. So सबसे पहली क्राइटेरिया है इंडियन सिटीजन होना. Then should be 25 years of age and more. 25 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, भारतीय नागरिकत्व होना चाहिए. She should be not be having unsound mind or insolvent. whimsical mind, पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए. ऑब्वियसली भारतीय नागरिक होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए एंड सेफ एंड साउंड माइंड नहीं होना चाहिए. She should not be employee of the central or the state government. कोई भी सरकारी पद पे वो सत्तारूढ़ नहीं हो सकता, वो कोई सरकारी पद संभाल नहीं सकता. मतलब सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो लीडर या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते. She should not be an employee, सरकार के वो कर्मचारी नहीं होने चाहिए. So he should not be employee of the central or the state of the government. He must not be proven criminal. उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हो. अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. So he must be not be proven the criminal. उनके पास क्रिमिनल साबित अगर हुए हैं कोई व्यक्ति तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता.
then there should be a period of 6 months between the two sitting of any of the house of the parliament can attend the proceeding of that house can be vote in the same even. Now see, a president can dissolve the Lok Sabha of the council of the prime minister. अब president के पास power है लोक सभा को डिसॉल्व करने का. ओके, सो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? ही शी शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री इंडिया, 25 साल की उम्र, क्रिमिनल ना हो, ऐसा डिक्लेयर अगर हुआ है तो वो मेंबर नहीं बन सकता, या तो अनसाउंड माइंड का है तो वो मेंबर नहीं बन सकता. नाउ देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बिटवीन द टू सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा का एक सेशन, दूसरा सेशन और तीसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का समय उससे कम होना चाहिए. मैक्सिमम 6 महीने से पहले मीटिंग बुलानी पड़ेगी सेशन के लिए. अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अ मेंबर of any of the house of the parliament can attend the proceeding of the house and can vote in the same house. अब राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा की मीटिंग अटेंड कर सकता है, लोकसभा का मेंबर लोकसभा की मीटिंग अटेंड करेगा, पर लोकसभा एज इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट लोकसभा को विलंबित कर सकते हैं या तो डिसॉल्व कर सकते हैं. सो कैबिनेट मिनिस्टर कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस. जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इवन इफ ही शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा बट इफ ही शी इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस देन ही शी कैन वोट इन दैट हाउस ओनली. अब मीटिंग अटेंड कर सकते हैं बट वोटिंग जो अगर राज्यसभा का मेंबर है वो राज्यसभा में वोटिंग करेगा, लोकसभा का मेंबर लोकसभा में वोटिंग करेगा, पर कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग अटेंड कर सकता है. कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा या तो राज्यसभा के सेशन को अटेंड कर सकता है, पर वोट वो जिसका मेंबर है, इफ दैट मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा देन ही शी कैन वोट इन द लोकसभा. इफ ही शी इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा देन ही शी कैन वोट इन द राज्यसभा. बट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है सेशन दोनों के अटेंड कर सकते हैं. सी, अगर मैं मिनिस्टर नहीं हूं, आई एम द मेंबर, तो मैं अगर मैं लोकसभा की मेंबर हूं तो मैं सिर्फ लोकसभा का सेशन ही अटेंड कर पाती हूं. इफ आई एम अ सिंपल मेंबर. इफ आई एम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, I am the simple member of the Rajya Sabha, I can attend the session of Rajya Sabha. But if I am a cabinet minister, if I am the cabinet minister, तो मैं दोनों में से दोनों का सेशन में अटेंड कर सकती हूँ. इवन आई कैन अटेंड द लोअर हाउस ऑल्सो, इवन आई कैन अटेंड द अपर हाउस ऑल्सो. बट आई हैव टू वोट फ्रॉम वेयर आई एम द इलेक्टेड. अगर मैं लोकसभा के मेंबर हूं तो लोकसभा में ही वोट करूंगी, अगर मैं राज्यसभा के मेंबर हूं तो मैं राज्यसभा में वोट करूंगी. सो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ कैन वोट इन द सेम even if he she is not member of the Lok Sabha. But if he she is the member of the upper house then he she can vote in the house only. See, फिर से सुनो. A president can dissolve the Lok Sabha on the council of the prime minister. A member of any of the house of the parliament can attend the proceeding of that house and can vote in the same house. Same house में वो vote कर सकते हैं. But a member of cabinet minister can attend proceeding of both house of the parliament even if she is not member of the Lok Sabha. But if he she is a member of the upper house then he she can vote in that house only. Okay? State of the Gujarat has representation of 26 seat. As I said, Gujarat का representation है लोक सभा में 26 seats. And in the Lok Sabha, the emergency, the term of the Lok Sabha can be extended for 1 more year. 5 year की टर्म है, पर इमरजेंसी के अंदर 1 साल उसकी आप टर्म बढ़ा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट. द टर्म ऑफ लोक सभा इज 5 year, ये याद रखना है. बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर भी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. And if needed, in case of national emergency, the term of the Lok Sabha can be extended for the 1 more year. If the president dissolve it, parliament cannot be challenged in court. अगर प्रेसिडेंट लोक सभा को डिसॉल्व कर देता है
तो पार्लियामेंट इसको कोर्ट में चैलेंज कर नहीं सकते। अल्टीमेटली पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। अगर प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। नाउ कोरम, कोरम मतलब मेंबर जितने प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे क्लास के अंदर एक, जैसे हमारा क्लास 40 स्टूडेंट का है और उसमें 10 स्टूडेंट ही आए तो कोरम कितनी हुई 10 की। अगर 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट तो कोरम हुई 20 की। सो लोकसभा में कोरम मतलब प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, सो कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। टोटल पार्लियामेंट के मेंबर्स कितने हैं लोकसभा के? 545। से फॉर एट अ टाइम 300 मेंबर आए हैं, 245 एब्सेंट है, तो कोरम कितनी हुई 300 की। अगर 400 मेंबर प्रेजेंट है तो कोरम कितनी हुई 400 की। ओके, सो कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस of the parliament. It is the number of member present and working in the house out of the total number of member of all the houses. Total number 545, उसमें से जितने present है member उसको quorum कहा जाता है. So the minimum quorum of the Lok Sabha is in the house out of the total number. So the minimum quorum of the Lok Sabha should be 1/10. Total number of कितनी है? Minimum 1/10. अगर 1/10 से मतलब 55 मेंबर से कम मेंबर्स होंगे तो सेशन उसका चालू नहीं होगा। मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 55 मेंबर्स। कोई सेशन चालू करने के लिए, काम चालू करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 55। सो व्हाट वी कैन से, लोकसभा शुड बी 1/10, दैट इज आउट ऑफ 545 मेंबर 55 शुड बी प्रेजेंट. So in similarly minimum quorum of the राज्यसभा टू शुड बी 1/10 और राज्यसभा की कोरम है 1/10. राज्यसभा में 250 मेंबर्स है तो यहां पर भी 1/10 कोरम है, मतलब 25 मेंबर कंपलसरी, तभी राज्यसभा का काम होगा. Okay, so this is the point what you have to keep in mind. So whatever point we have discussed today, we talk about the principal division of power, that is the legislature. In that we talk about the unicameral and the bicameral and Lok Sabha. Qualification, what is a Lok Sabha, power of the Lok Sabha, member of the Lok Sabha, and so on. Okay, so just write today's homework. Write a short note. So please write the homework. Write a homework. Write a short note on Lok Sabha. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकसभा. आपको लोकसभा के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. दिस इज योर होमवर्क. सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकसभा. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे. एंड हियर यू हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ द लोकसभा. इवन यू शुड राइट द क्वालिफिकेशन एज वेल. ओके, सो यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन द लोकसभा. दिस इज योर homework. Please student, this is one of the most important chapter. Please, reading is most important. So please इसको reading करो, clear करो. Okay, in next lecture we will continue with the Rajya Sabha, qualification and the quorum and so on. So here I am ending up this lecture. This is your homework. Write a short note on the Lok Sabha. So thank you, take care and goodbye.